اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے والے اور سننے والے جتنے بھی میرے دوست احباب، میرے ویورز اور جو مجھے فالو کرتے ہیں، ان تمام کو تہہ دل سے السلام علیکم۔ میرا نام نعیم سیال ہے اور بایو فلاک فش فارمنگ پہ پچھلے 4 سال سے میں کام کر رہا ہوں، اور پچھلے 2 سال کا جو گیپ ہے اس کی کارگزاری ضرور چاہوں گا کہ میں آپ لوگوں کو سناؤں۔ 2 سال جو گزرے اس میں سوشل میڈیا پہ جو بایو فلاک کے حوالے سے پاکستان کے اندر جو اپڈیٹس رہیں وہ، اور لوگوں نے کتنا کام کیا، بایو فلاک فش فارمنگ کس سٹیج پہ اس وقت ہے، ان تمام چیزوں کو ڈسکس کرنا بہت ضروری ہے۔ میں سب سے پہلے اپنے ویورز کو یہ بتانا چاہوں گا کہ ہم نے جو ٹینکس آج سے 3 سال پہلے بنائے تھے، جب کراچی میں پہلی دفعہ اربن فلڈ آیا آج سے 3 ساڑھے 3 سال پہلے، وہ جو فلڈ تھا اس نے ہمارے ٹینکس کو بہت نقصان پہنچایا، ڈیورنگ کنسٹرکشن بھی نقصان پہنچایا، کیونکہ ہم نے نیا اس میں ہم نے مٹی ڈالی تھی، کیونکہ وہ پلاٹ کافی نیچے تھا اور تقریباً 350 گز کا وہ پلاٹ تھا قائد آباد مدینہ ٹاؤن کے ایریا میں کراچی میں، اور ہم نے اس کو کنسٹرکٹ کیا تھا بلاکس میں، اور جب وہ پانی تیزی سے اس علاقے میں داخل ہوا ندی توڑ کے، تو پھر وہ ٹینکس جس کے اندر ہم نے کافی مقدار میں مچھلی کا بچہ ڈالا ہوا تھا، مختلف اسپیشیز ڈالی ہوئی تھی، وہ ٹینکس جو ہے وہ کریک ہو گئے۔ 3 ٹینکس بچ گئے تھے جو بعد میں ہم نے ان کو کافی ٹائم تک اس کو ہم نے رن کیا، ظاہر ہمارا ایکسپیریمنٹل فیز بھی چل رہا تھا اس میں، تو ہم نے اب ہمارے پاس صرف ایک ٹینک ہے، باقی 2 ٹینکس بھی وہ کریکس ہو چکے ہیں۔ یہ تو وہ سینیریو تھا جو میں اپنے حوالے سے بیان کر رہا تھا، اور اس پہ ہم نے کیا 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 نہیں کیا۔ ہم نے سولر سسٹم لگوایا، ہم نے جنریٹر آلریڈی وہاں پہ ہم نے انسٹال کیا ہوا تھا، اور الیکٹریسٹی کا وہاں بہت زیادہ شارٹ فال تھا، بڑی پریشانی تھی، اور اس پہ کافی کرٹیسزم بھی رہا واٹس ایپ گروپس کے اندر، سوشل میڈیا پہ، لیکن اللہ تعالیٰ کا رحم یہ ہوا کہ جو نیگیٹو کرٹیسزم ہوتا ہے وہ زیادہ دیر پا نہیں ہوتا، اور سوشل میڈیا پر کوئی بھی چیز زیادہ دیر چھپی نہیں رہ سکتی، ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ جب وہ چیزیں سب کچھ کھل کے سامنے آ جاتی ہیں۔ اس 2 سال کے دوران جو میں نے سوشل میڈیا کو دیکھتے ہوئے محسوس کیا کہ بہت سے ایسے نان اسٹیک کریکٹرز جو تھے وہ مارکیٹ میں آ گئے کہ جنہوں نے کوئی کام نہیں کیا تھا بایو فلاک فش فارمنگ پہ، ان لوگوں نے بایو فلاک کی دنیا میں قدم رکھا۔ ان کی جو ایبلٹی یا کیپیبلٹی یا ان کی جو ایجوکیشن یا جو ان کا ایکسپیرینس تھا، وہ صرف اتنا تھا کہ وہ لوگوں کو بیوقوف بنانا جانتے تھے۔ ان کو پتا تھا کہ ایک نئی چیز جو مارکیٹ میں آ گئی ہے اس کو کیسے کیش کروانا ہے۔ انہوں نے یوٹیوب، فیس بک اور واٹس ایپ گروپس کو جوائن کر کے جو وہاں سے انفارمیشن لی، ان کی بیسس پہ انہوں نے لوگوں کو ٹرین کرنا نہیں شروع کیا، بلکہ لوگوں کو سیٹ اپ لگا کے دینے کی طرف لوگوں کو انکریج کیا۔ چونکہ سیٹ اپ نہیں لگ رہے تھے اتنی بڑی تعداد میں، لیکن جب وہ کریکٹرز اس دنیا میں آگے بایو فلاک کی دنیا میں، تو انہوں نے بہت تیزی سے اس پہ ترقی کی، جس کو میں نیگیٹو ایڈوانسمنٹ کہوں گا، یا نیگیٹو جو انہوں نے معاملات لے کے چلے، اس میں بہت سے لوگوں کا لاس ہوا۔ میرا ماننا یا میرا کہنا یہ ہے کہ سب سے پہلے نمبر 1 پہ ٹریننگ ہے،
नंबर 2 पे आपका एक्सपेरिमेंटल फेज़ है, जो बहुत छोटा सेटअप होना चाहिए, आपके बैकयार्ड में, आपके घर में, आपके लॉन में, आपकी छत पे हो। और जब आप इन दोनों चीज़ों में कामयाब हो जाएँ, तो फिर आपको एक बड़े सेटअप की तरफ जाना चाहिए। जब आपको ये लगे कि अब आपने बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग को अच्छी तरह से सीख लिया है, एक्सपेरिमेंट कर लिया है, ऑब्जर्वेशन कर ली है, उस पे आप कुछ पेपर्स लिख चुके हैं और आप समझते हैं कि अब आप इतने मैच्योर हो गए हैं कि आप बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग को एज ए बिजनेस कर सकते हैं, तो आपको उस तरफ आना चाहिए। लेकिन उन्होंने वो काम ए से स्टार्ट करने के बजाय, वो जो ऐसे कैरेक्टर्स आगे थे नेगेटिव, उन्होंने लोगों को इस बात पे इनकरेज किया कि आप पहले बड़े सेटअप लगाएं, उसके बाद उसमें मछली का बच्चा डालें और फिर हम आपको बताएंगे कि आपको कैसे करना है। दुनिया में कहीं भी ऐसा नहीं होता है। जब भी आप किसी बिजनेस को रन करते हैं तो लोग पहले उसको किताबी शक्ल में पढ़ते हैं, फिर उसको सोशल मीडिया पे देखते हैं, फिर उसकी कुछ ट्रेनिंग हासिल करने की कोशिश करते हैं, फिर उसकी ऑब्जर्वेशन करते हैं जाके मुख्तलिफ जगहों पे जहाँ वो काम हो रहा होता है, या कुछ टाइम स्पेंड करते हैं, फिर उसको अपने एक्सपेरिमेंटल फेज में लेके आते हैं कि छोटा सेटअप लगा के पहले रन किया जाए, इसमें हमें कुछ 4 पैसों की बचत है या नहीं है, या इस काम को हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। उसके बाद जाके लोग बड़े सेटअप की तरफ आते हैं। लेकिन ना जाने लोगों की समझ में ये बात नहीं आई कि वो लोग जो उनको इनकरेज कर रहे हैं कि बड़े सेटअप्स लगाए जाए, बड़े सेटअप की तरफ आया जाए, और फिर एट द एंड ये होता था कि वो उनको ट्रेन भी नहीं करते थे। जाहिर है कि उनके पास तो ट्रेनिंग के लिए कोई मवाद ही नहीं था, कोई एक्सपीरियंस ही नहीं था, कोई एग्जाम्पल भी नहीं थी, कोई उनका कोई सेटअप ही नहीं था, तो वो क्या किसी को ट्रेन करते या किसी को बताते। वो तो यूट्यूब के ऊपर बने हुए जो मामला थे उनकी बुनियाद के ऊपर सब मामला को लेकर चल रहे थे। मैं अभी उन लोगों के नामों को डिस्क्लोज नहीं करना चाहता। मार्केट में, सोशल मीडिया पे वो नाम हैं, लोग उनको डिस्करेज भी कर रहे हैं। जिन लोगों के साथ ये मामलात रहे, जो लोग तबाह बर्बाद हुए, जिनका लॉस हुआ, उनकी चीखों पुकार भी सोशल मीडिया में मौजूद है। और हमें खुद भी इस चीज़ का ख्याल करना चाहिए कि वो लोग कि जिनका अपना ज़ाती सेटअप नहीं है, जिनका कोई बायोफ्लॉक के हवाले से कोई सिनेरियो नहीं है, कोई बैकग्राउंड नहीं है, तो उनको किसी सूरत में भी आप कुछ भी पे ना करें, कुछ भी उनको पे ना करें, बल्कि उनका पहले बैकग्राउंड देखें, उनका सेटअप देखें, उनका एक्सपीरियंस देखें, उनका इंटरव्यू करें और उसके बाद फिर आप जाके किसी तरफ आए। तो आज का जो वीडियो थी वो इस हवाले से थी कि मैं अपने 2 साल की जो हल्की फुल्की कार गुजारी थी वो थोड़ी बहुत मैंने बयान की है, और इन 2 सालों के दौरान जो लोगों के साथ हुआ या हो रहा है वो मैंने बयान किया है। और आखिर में ये आप लोगों को मैं कहना चाहूँगा कि हम बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग को इस सोच के तहत अब हम लेके चलेंगे। ये मेरी पहली वीडियो है बहुत अरसे के बाद। वो सोच ये है कि जिस तरह लोग घरों में गाय, भैंस, बकरियां पालते हैं, मुर्गियां पालते हैं, इसी तरीके से हम मछली पालना लोगों को सिखाएंगे। हम चाहेंगे कि लोग अपने घरों में, अपने लॉन्स में, बैकयार्ड के अंदर, गैलरीज के अंदर, एल्वेस के अंदर, अपने कोई एक्स्ट्रा रूम्स उनके पास पड़े हैं, उसमें छत पे अगर वो कोई 2, 3, 4 छोटे टैंक लगा के, 2-2, 2,500, 3,000 लीटर के टैंक्स लगा के अपने घर की मछली अगर वो पालना चाहें, साल भर की मछली भी उनको मिलेगी, एक्सपीरियंस भी मिलेगा, वो उसको सेल आउट भी कर सकते हैं, और ताज़ा मछली जिंदा खुद अपने हाथ से पकड़ के उसको खाने की मेज़ पे लेके जाना, पूरा प्रोसेस करने के बाद उसका मज़ा ही कुछ और है। तो मैं ख़ास तौर पे जो हमारे शहरी इलाकों से जो लोग ताल्लुक़ रखते हैं, बड़े शहरों में हैं, जैसे हमारा कराची है, स्पेशली हैदराबाद है, हमारा सक्खर है, इस तरीके से हम आगे चलें तो हमारा लाहौर है, इस्लामाबाद है, पिंडी है, हमारा फैसलाबाद है, इस किस्म के जो बड़े इलाके हैं, कोयटा है, पेशावर है, ये बड़े शहरी इलाके जहाँ लोग मछली को पसंद भी करते हैं, खाना भी चाहते हैं, और मछली के बारे में लोग काफ़ी इंफॉर्मेशन भी रखते हैं कि मछली कितनी फ़ायदेमंद साबित हो सकती है इंसानी ज़िंदगी के लिए। इस चीज़ से कतई नज़र कि सर्दियों में खानी चाहिए, गर्मियों में खानी चाहिए, ये कोई बहस ही नहीं है। ये एक ऐसी चीज़ है कि जो आप किसी भी मौसम में इसको खा सकते हैं, और इसके कोई नेगेटिव असरात नहीं होते इंसान की लाइफ पे, बल्कि डॉक्टर्स इसको बारहा बहुत सी बीमारियों के अंदर ख़ास तौर पर सजेस्ट करते हैं कि आप वाइट मीट की तरफ आएँ, आप मछली खाने की तरफ आएँ। तो हमारा जो प्रोग्राम है
वो ट्रेनिंग्स का सिलसिला स्टार्ट होने वाला है इंशाल्लाह ताला। और हम वो सेटअप जो लोग अपने बैकयार्ड में, अपने घर में लगा सकते हैं, वही सेटअप हम अपने घर की छत पे रेडी कर रहे हैं और उसी सेटअप को फिर हम कॉपी करवाएंगे। देखिए, एक चीज जो आपने बनाई है या जो आपने जो सेटअप जिस सेटअप पे आप लोगों को ट्रेन कर रहे हैं, तो वही सेटअप जो है लोगों को बना के दें। वो उनके सामने एक मिसाल के तौर पे होना चाहिए कि ये हमने जो सेटअप लगाया है, यही सेटअप आपके घर की छत पे लग सकता है। कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होगी इसमें, किसी भी तरह का कोई सीमेंट वर्क नहीं होगा इसके अंदर इंशाल्लाह ताला। इसके अंदर किसी भी तरह की कोई मैश इस्तेमाल नहीं होगी, इसमें कोई तारपोलिंग नहीं होगी, बल्कि हम प्लास्टिक फाइबर का मिक्सअप का एक टैंक्स जो है वो हम उसको उसका अरेंज कर रहे हैं, जिनके साइजेस बहुत बड़े नहीं हैं। मुख्तलिफ कलर्स में मिल सकते हैं आप, लेकिन वाइट कलर और ब्लू कलर जो है, मतलब जिसको स्काई ब्लू कहते हैं, उस पर ज़्यादा ये अच्छे भी लगते हैं और इन्वायरमेंट के हवाले से भी अच्छे हैं, और ये फूड ग्रेड होंगे। तो ये टैंक्स जो हैं, इनकी कॉस्ट भी हम आपको बता देंगे, इनका पूरा पैकेज भी हम आपको बता देंगे। और ये जो 15-15, 20-20 लाख रुपए के सेटअप लोग लगा के अपने आप को बर्बाद कर रहे हैं, तो वो बहुत ही माइनर सी रकम के अंदर आप अपने घर पे सेटअप लगा के, बिल्कुल आप जिस तरह मुर्गी के दड़बे अपने घर की छत पे रखते हैं, या एक दो भैंस गाय पाल लेते हैं, या एक दो बकरियां पाल लेते हैं अपने घर के बच्चों के लिए दूध के लिए, इस तरीके से मछली भी आप पाल सकेंगे। तो हम इस पॉइंट ऑफ व्यू को लेके चल रहे हैं, और इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो अल्लाह ताला हमें कामयाब करेगा। बिल्कुल सिद्ध के दिल के साथ, बड़े ईमान के साथ, बड़ी ही दयानतदारी के साथ हम इसको लेके चलेंगे इंशाल्लाह ताला, जिसमें लोगों का एक रुपए का भी नुकसान ना हो। और वो जो लाखों रुपए लगा के लोगों को बर्बाद कर रहे हैं, अल्लाह ताला उनको ज़रूर पूछेगा कि वो किसी भी नए बिजनेस को जो भी मार्केट में आता है, वो फौरन उसको कैश करवाने की कोशिश करते हैं, और एक लूट मार का बाजार जब वो सरगर्म हो जाता है, जिससे लोगों को अपनी अकल इस्तेमाल करते हुए भी अवॉइड करना चाहिए, और ख्याल करना चाहिए कि लोग किस तरीके से लोगों को मोटिवेट करते हैं, और किस तरीके से उनकी जेब से पैसा निकलवा के उनको तबाह बर्बाद कर देते हैं। तो आप लोगों से गुजारिश है कि आप मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और आपको ये नई जो आने वाली वीडियोस हैं, ये आपको मिलती रहेंगी इंशाल्लाह ताला। और अल्लाह ने चाहा ज़िंदगी रही तो बायोफ्लॉक को एक अच्छे और जदीद और एक सोफिस्टिकेटेड तरीके से और एक साफ़ सुथरे तरीके से इसको हम दोबारा से मॉडिफाई करेंगे, रीमॉडिफाई करेंगे इनके टैंक्स को, और फिर हम इसको लेके आपको उसका पूरा हम विज़िट करवाएंगे अपनी छत का, कि जिस पर हम ये टैंक्स लगाएंगे, ताकि लोग इनकरेज हों, उनको गाइडलाइन मिल सके कि सेटअप किस तरह लगाए जाते हैं, और एक छत पे हम कितनी मछली पाल सकते हैं। तो आज की गुफ्तगू का इख्तिताम यही होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग कोऑपरेट करेंगे और मेरी वीडियोस को देखते रहेंगे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।